नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बड़ाक वार्ता में आप सभी को स्वागत करते हुए मैं दिलीप सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचार। कछार जिले की खुलीचोड़ा इलाके की हत्याकांड के हुआ इंसाफ, 5 अपराधियों की आजीवन कारावास। कछार जिला के उदारबन क्षेत्र के श्यामाचरण दास की मौत के बाद भी भेजा गया डी वोटर के नोटिस। सिलचर की विवेकानंद रोड में मक्खीरानी सुनीति हलदर को किया गया गिरफ्तार, लोगों में चढ़ी आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। खुलीचोड़ा के धन सिंह हत्याकांड के घटना को लेकर 5 अपराधियों को यावज्जीवन कारावास, साथ ही 7 लोगों की रिहाई किया गया सिलचर कोर्ट। कछार जिला की फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का अजीब कांड, नागरिक प्रमाण को लेकर मृतक व्यक्ति को नाम पर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने भेजा नोटिस। मृतक के परिजनों का हालत पर नोटिस गिराकर कहर बना। कछार जिले की उधारबन थालीग्राम इलाके की रहने वाले श्यामाचरण दास का सन 2016 के मई महीने में मौत हो चुकी थी। मौत से पहले उनके खिलाफ सिलचर के 3 नंबर एफटी कोर्ट में डी वोटर का एक मामला चल रहा था, लेकिन ये मामला चलने के दौरान सन 2016 के मई महीने में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिजनों ने श्यामाचरण दास का डेथ सर्टिफिकेट एफटी कोर्ट में देने के बाद एफटी कोर्ट ने उन्हें मृतक घोषित कर मामले को फाइल बंद कर दिए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अचानक विपत्ति परिजनों में कहर बनकर टूटी जब पिछले 15 मार्च को 2022 के सिलचर की 3 नंबर एफटी कोर्ट ने मृतक श्यामाचरण दास के नाम पर फिर से जब नोटिस प्रदान किया, और यह नोटिस मिलते ही चकित हो उठे मृतक श्यामाचरण दास के परिवार वाले, क्योंकि पिछले 5 साल पहले हुई मौत जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को फिर से कोर्ट में कैसे हाजिर करें, इस मुद्दे को लेकर आज भी विभिन्न माहौल में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल तो दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले इन परिवार सदस्यगण क्या करेंगे ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। इधर मृतक श्यामाचरण दास के पत्नी सुलेखा दास के खिलाफ भी एफटी कोर्ट में डी वोटर का एक मामला चल रहा है। सिलचर के डिटेंशन कैंप में 2 साल सजा काटकर जमानत पर मुक्त हुए सुलेखा दास, और अब वह 2015 মরছে না, তারপরে এর আগে কেস আছে, কেস তো টাইম মারা হয়েছে, তারপরে এই মরছে বাদে মেডিকেল আমরা বাস সার্টিফিকেট বাস কইরা তারে দিলাম না এফসিতে না। এরপরে এদের তো ইয়ে হলো, তো আমরা তো মনে হয় যার পুষতে হইতো না। এরপরে আমি গেলাম গা ঢুকিয়া, আরও 2 বছরের বেচার ওখন আইয়া বাইরে এসে যাওয়া, তখন আবার আইসে মরার নামে নোটিস। আপনার জামিন শ্যামাচরণ দাস কবে মারা গেছে? 2 বছর 15 6 বছর হয়েছে, 6 বছরের থেকে বেশি হইতো হারে মনে হয়। আমার তো হিসাব নাই, লেখাপড়া কম তো। নোটিশটা কবে আইছে? নোটিশটা মনে হয় 3-4 দিন হইব আইছে। এখন আপনারা কি তোমার কবে হাজিরা দেওয়া দিয়া? 28 তারিখ কইছে ইংরেজি যাইতো। আপনারা যাবেন? অনিদা আমরা চিন্তা করলাম কি তা করন না করন, ওই এইভাবে যদি হয়তো কেমনি আমরা চলতাম সরকার। আমার তো কোনো উপায় নেই। আপনিও জেলও আসতে পারবেন? 2 বছর থেকে আইলাম, আওয়ার পরে আর বিপদ, বিপদ। ওখানে কীভাবে ঠিক তাই যেন পৌঁছায় এইভাবে হইলে। যদি মরার কুস্তা না দিতাম, না জানাইতাম তো এক কথা, সব তো জানাই সাইডে যদি এই লেখা নয় কেমনি কেটে। আমার বাবা তো 2016-তে মারা গেছেন, তারপর তো তাইনের কেস খেলা হয়েছে, কেস খেলা সত্ত্বেও তাই মারা গেছেন। মারা যাওয়ার পর তো আমরা 2-3 মাস খেলছি, কেস খেলার পর তো একটা জাজমেন্ট কপি দেওয়া হয়েছে, তারপর ডেথ সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে। তো আমরা ভাবছি কেস শেষ, তারা কইছে কেস শেষ, এটা আর কোনো কিছু হইতো না, ডেথ সার্টিফিকেট সব কিছু দেওয়া হয়েছে। তারপর আজ 15 তারিখ নোটিশ আইছে, নোটিশ আওয়ার পর যে তোমার বাবার নামে নোটিশ আইছে। আমরা কইলাম বাবার কেস তো শেষ, জাজমেন্ট কপিও আছে, তারা সত্ত্বে কেন নোটিশ আইছে? কয় না তোমরা তখন এফটি কোর্সে যাইতেই লাগবো, নোটিশ আইছে যখন তোমরা যাইতে লাগবো। নোটিশ কে দিয়া গেছে? এফটি কোর্ট থেকে দেয়া গেছে একজন। আপনারা খবরে হাজিরা দেওয়ার কথা? হাজিরা দেওয়ার কথা 30 তারিখে। আপনারা হাজিরা দিবা?
হ্যাঁ 23 তারিখে দেওয়ার কথা তারা কইছে যে একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন লিখিয়ে আর ডেথ সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা তোমরা জমা দিলেই বা এটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা অনেক চিন্তিত, মানে এটা কেস শেষ, জাজমেন্ট কোর্টে পাওয়া গেছে, তা সত্ত্বেও আবার নোটিশ আইছে, আর মরা মানুষের সঙ্গে কিরম কেস খেলা যায় এটা তো আমরা জানি না। No, there is no goof-up. There were two different cases against Shyamacharan Das. One was a devoter case and second was an FT case. Two different at different times. So in the first case in 2016, as he died, so documents were submitted to the court, and based on the documents which were submitted, court gave a judgment abating the cause based on his death. But there was another case which was still lying pending, and there were no documents submitted in that case. So because there was no other evidence in the court, so court gave a fresh notice calling for his appearance on 30th of March to prove his nationality. But since that person has already died, as the notice came to us, we will be informing the court of his death, and based on which the further action will be taken by the court. सिलचर की विवेकानंद रोड से मक्खी रानी गिरफ्तार, मिला उनका घर से काफी सारे आपत्तिकर वस्तुएं। सिलचर के विवेकानंद रोड से गिरफ्तार हुए सुनीति हवलदार नाम के एक मक्खी रानी यौन संबंध से जुड़े टेबलेट के सहित काफी आपत्तिकर सामान उनका घर से बरामद किया गया। असम राज्य के सिलचर शहर संलग्न विवेकानंद रोड में स्थित 28 नंबर लेन की 4 नंबर मकान से सुनीता हवलदार नाम के एक मक्खी रानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि मक्खी रानी सुनीति हवलदार विवेकानंद रोड इलाके में जगदीश नाथ के मकान में किराए पर रहती है और काफ़ी दिनों से ये मक्खी रानी किराए के इस घर में शारीरिक व्यापार चला रही थी। मुद्दे को स्थानीय लोग काफ़ी दिनों से जानते थे। बुधवार को रात को करीबन 7 बजे स्थानीय लोगों ने कुछ भिन्न धर्मी युवकों को देखा और इसी से शक पैदा हुआ, और जिसके चलते स्थानीय लोगों ने ही अपने दल बल के साथ सुनीति हवलदार नाम की उस मक्खी रानी का घर में घुसा। जाने के बाद ही उन लोगों ने जो देखा, देखने के बाद ही अचंभित हो गए। साथों साथ कछार जिला प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया। कछार जिला प्रशासन के तरफ से तारापुर का आरक्षी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करके थाने ले गए। सवाल ये उठता है कि शहर के बीचों बीच अगर इस तरीका का घटनाएं घटती रहेगी तो आम जनता कितना तक सुरक्षित है। घर का मालिक का नाम है जगदीश नाथ। अभी कितना दिन से चल रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। आज क्या हुआ, आज शाम को कुछ लड़के लोग आया, बोला कि सर ऐसे ऐसा बात है कि हम लोग हिंदू संगठन से हो, इस ऐसे ऐसे बात है इस घर में कुछ मतलब कार्रवाई। और हम लोग आया अंदर गया तो देखा कि एक लड़का और एक लड़की, तो लड़की ने बोला कि हम तो सफाई करते शाम तो ऐसा तो जो लड़का लोग सर्च किया घर में इधर उधर सर्च करते हुए हमको जो है कंडम टैबलेट बहुत ज़्यादा 1-2 का बात नहीं 30-40-50 रुपये हम लोग मिला, जो कि उनके पास में फोटो वगैरह भी है। उसके बाद 2 रूम था, वो 2 रूम हम लोग ने खुला, खुल के देखा कि किस तरह लगा फैन भी है, उसमें भी कंडम वगैरह सब। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन तो अच्छा नहीं, तो थोड़ा देर में जो भाड़ा लिया हुआ है, जो लेडी जो भाड़ा लिया हुआ है वो थोड़ा बाद में आया। उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, आप लोग को भी बुलाया, तो बाद में तो सारा कहानी आपको पता। 16 साल बाद धन सिंह हत्याकांड का हुआ इंसाफ। 5 लोगों की आजीवन कारावास, 7 लोगों की हुआ रिहाई। कछार जिला के खुलीचोड़ा इलाके के धन सिंह बर्मन हत्याकांड में आरोपियों को जेल भेजा गया। 16 साल बाद खुलीचोड़ा हत्याकांड का न्यायिक राय दिया गया। আমরা সাজা দিছেন 2006 ইংরেজির কেস 2014 ইংরেজির ডাকি আনি আজকে আমরা সাজা দিছেন, একদম নির্দোষী, আমরা কোনো দোষ করছি না। कछार जिला की धोलाई समष्टि की धन सिंह बर्मन हत्याकांड जो हुआ था आज से 16 साल पहले स्थानीय कुछ लोगों ने एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के दौरान कुछ हादसा हो गया था
और उस हादसा के चलते धन सिंह के परिवार ने न्यायिक जांच विचार की थी और उस न्यायिक जांच विचार करने के बाद अदालत ने सही तरीके से अपना कदम उठाया। इधर इस घटना को लेकर उस दिन अदालत प्रांगण में काफ़ी भीड़ भी देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस को 2-3 बार ये भीड़ को हटाने में जुटने में भी देखने को मिला। इधर सेशन जज AJ बरुआ ने हैदर अली, आबिदुर रहमान, सलीमुद्दीन, बोटल मियाँ और चांदू मियाँ को भारतीय दंड विधि 302 धारा के हिसाब से यावज्जीवन कारादंड दिए। वहीं दूसरी ओर 147/148/448 धारा में कारावास और जरिमाना भी किया गया। मामले में बेकसूर खलास हुए हैं 7 लोग। 2006 साल में धन सिंह बर्मन हत्याकांड संघटित हुआ था। काफी दिनों से उस इलाके में एक उग्रपंथी संगठन अत्याचार चलाया जा रहा था और जिसका चलते वहां एक कम्युनिटी हॉल में मीटिंग भी बुलाई गई थी और उस मीटिंग चलने वक्त देखा गया कि धन सिंह का घर से कुछ आतंकवादी के लड़कों ने निकल रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ का जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो लोग धन सिंह घर में जाके हमला बोल दिए, जिसका चलते धन सिंह का मौत हो गई। और धन सिंह का मौत होने के बाद धन सिंह के परिवार ने कोर्ट में अपील की कि न्यायिक मांग करते हुए उन्होंने सही तरीका से ये केस को न्यायिक जांच कराने के लिए आवेदन भी किए थे। সাজা দেওয়াইছেন, বুঝছো নি? আমরা তো এটার ধারে দিয়ে আসলাম না, যারা সাজা পাইতো এরা পাইছেন, আমরাও পাইছি দোষী মানছে, আর কইবার কিচ্ছু নাই, বুঝছো নি? और इस न्यायिक जांच 16 साल बाद जाके मिला उनको। इधर इस घटना को लेकर सिलचर कोर्ट में काफी सारे उत्सुक जनता का भीड़ देखा गया। उत्सुक जनता को हटाने के लिए पुलिस ने काफी कोशिश किया। काफी समय में भी उन्होंने उनको खदेड़ा भी, 2-1 बार उनको खदेड़ना भी पड़ा। वहीं दूसरी ओर जेल जाते जाते उन सजा प्राप्त अपराधियों ने मीडिया के सामने बयान किया कि उनके साथ नाइंसाफी हुआ है और उसका लिए वो लोग और भी आगे दरवाजे खटखटाएंगे। एक्चुअली ये 2011 वो सेशन नंबर क्या है, उसका पहले का केस है, क्रिमिनल फीलिंग्स का केस है। क्योंकि हमने 7 मई यासीन अली साहब और एडवोकेट नगीब हसन, हम लोग 7 आदमी के लिए लड़े। 6 को एक्विटल किया, 1 का कन्विक्शन हो गया और लाइफ हो गया। इस केस में टोटल 21 एक्यूज थे, 12 एक्यूज ने ट्रायल किया, उसका ऊपर में ट्रायल हुआ, 5 का कन्विक्शन हो गया। तो कन्विक्शन होने का जिस पास को कन्विक्शन है उसमें एक एडवोकेट, 2 का एडवोकेट वो सामंजस्य विश्वास है, 1 का है जसीमुद्दीन, 1 का है मजमील साहब, और हम तो 7 आदमी के लिए हम लड़े थे। तो उसमें 6 का एक का कन्विक्शन हो गया। एक्चुअली मुख्य धारा है 149, 147, 141 और तो प्राइम तो धारा 302 का एक आदमी का मर्डर हो गया। लोग के बाद हमारे जो फर्स्ट जज है उन्होंने जजमेंट दिया, 5 का कन्विक्शन कर दिया लाइफ का और 7 को बाइज्जत रिहा कर होगा। तो कोर्ट का ऊपर वो लोग तो अपील करेगा, कोर्ट में जाएगा। हमारा भी 1 का कन्विक्शन हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट में अपील करेगा। कछार जिला के बोरखला क्षेत्र में वन दुर्गा मंदिर का सामने एक सड़क हादसे में 15 आदमी से भी ज्यादा आदमी को चोट पहुंची है। वहीं 5 आदमी का हालत नाजुक बताया जा रहा है। सुबह काम में निकले एक मैजिक ट्रक में ये लोग जा रहे हैं।
अचानक वो मैजिक ट्रक का ड्राइवर अपना गाड़ी संभाल नहीं पाए और 2-4 बार पलटी खा गए, जिसके चलते करीबन 15 से 17 लोग घायल भी हो गए और उसमें से 5 लोगों की सिलचर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया क्योंकि उनका हालत नाजुक था। बाकी लोगों की बोरखुला अस्पताल में अभी चिकित्सा चल रहा है। আমরা আধা ঘন্টা মানে আগে খবরটা পাইছি যে আমরা ময়নাগড় আর লালবাগের লেবার চণ্ডীঘাট বাগানে কাজে যাই। তো আমরা খবর পাই আইলাম, আইয়া এখানে দেখি যে রাস্তার মধ্যে পাথর ফালাইল আছে। এই পাথরে গাড়ি স্লিপ করিয়া গাড়ি পাল্টি খাইছে। আর এটা তো খাওয়ার কথা না, এরকম রাস্তার পাথর থাকার কথা না, কারণ NHAIয়ের গাড়ি সবসময় এই রাস্তার মধ্যে পেট্রোলিং করে এবং যেখানে এই যে রাস্তার কন্ডিশন মানে যেরকমভাবে দেখলাম এটা তো সবসময় তারা লেবার দিয়ে মেনটেন করে, কিন্তু এখানে তো কোনো এরকম ব্যবস্থা দেখলাম না। আর তা আমি মনে করব যে এটা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি যে গাড়ি যারা পেট্রোলিং করতেছে তারা এটার দায়ী নিতে লাগবো। আর এই রাস্তাঘাটের যে বেহাল অবস্থা, হাতিচড়ার থেকে এই লালবাগ থেকে হাতিচড়া পর্যন্ত আমরা এখানে দেখছি ডাউনের মধ্যে বিশেষ করে বেশিই খারাপ। আর রাস্তার মধ্যে এরকম স্যান্ড গ্রেভেল যেখানে সেখানে ফালাল থাকে, এটার মধ্যে গাড়ি ওই স্লিপ হইয়া গাড়ি পাল্টি খাইছে। আর আমরা বাগানের প্রায় 25-30 জনের মতো শ্রমিক জখম হয়েছে। এখন তারা বড়খলাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে, বড়খলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আশঙ্কাজনক তো এখন পর্যন্ত খবর পাইলাম যে 5 জনের মানে অবস্থা সংকটজনক। তবে এখন আমরা আবার এই বড়খলা হাসপাতালে যাব, যাই করে আমরা তদন্ত করে দেখব কতজন কীরকম কী পর্যায়ে আসে। যদি দেখবো মেডিকেল রেফার করতে লাগছে তাহলে আমরা শিলচর मेडिकल कॉलेज रेफर करब। सिलचर में अनुष्ठित हुआ 175वां असम राइफल की प्रतिष्ठा दिवस। सिलचर में संपन्न हुआ 175वां राइजिंग डे असम राइफल की। प्राक्तन सेनाकर्मी सहित मार्टियर लोग जो थे उन लोगों की संवर्धना भी प्रदान किया गया। सिलचर असम राइफल के कार्यालय में साथ ही हेल्थ कैंप, सरकारी काफ़ी सारे सुविधा के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। विभिन्न क्षेत्र में असम राइफल के जो जवानों ने अपने देश के लिए जो बलिदान दिए थे उसका बारे में भी चर्चा किया गया। साथ ही उनकी रिटायर्ड होने के बाद जो समस्या है उस समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए इसके बारे में भी काफ़ी देर तक चर्चा भी किया गया। जैसा कि हम सबको मालूम है कि असम राइफल आज एक उत्तर पूर्वी प्रहरी के नाम से भी विख्यात है। इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास, एक गौरवशाली हिस्ट्री रही है। ये सब आप सबके अपूर्ण सहयोग और बलिदान का नतीजा है। असम राइफल न केवल उत्तरी पूर्वी सीमाओं के अंदर बल्कि आज जम्मू कश्मीर में भी सद्भावना और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपना महत्वपूर्ण और अतुल्य योगदान दे रही है। असम राइफल के अंदर बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया है। आज ये उन्हीं का नतीजा है कि हमेशा असम राइफल को इतनी प्रसिद्धि मिली है और उनका नाम, उनका वर्चस्व आज भी कायम है। असम राइफल के अंदर जो भी कार्य हुए हैं इन सब में आप सबका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान रहा है। मैं आप सबको एक बार फिर असम राइफल के रेजिंग डे के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी हमारे असम राइफल का नाम और इतिहास सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आज मैंने टीके दास साहब से एक गूगल फॉर्म शेयर किया है। आप सब लोग 2022 साल हो गया है, इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अभी जो हमारा DGR में अरिसा सेल है उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन गूगल फॉर्म जारी किया है, जिसका सॉफ्ट कॉपी मैंने दोनों जो दास साहब हैं उनको व्हाट्सएप पे दिया है। आप सब वो फॉर्म लीजिए ऑनलाइन, उसको भरिए और जो लिंक मैंने शेयर किया है दास साहब के साथ उस लिंक पर जाकर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स उसमें डालनी होगी। कौन सी यूनिट से आप रिटायर हुए हैं, कब रिटायर हुए हैं, आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, ऐसी बेसिक डिटेल्स के साथ आपने वो फॉर्म भरना है। और वो फॉर्म आपका रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्ड हमारे जो DGR में अरिसा सेल है वो मेंटेन करेगा, क्योंकि आज के युग में
पुराना फाइलिंग सिस्टम नहीं चलता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो जब तक आपके डाटा का ऑटोमेशन नहीं होगा, वो ठीक से आपको जो आपकी इंटाइटलमेंट है आपके परिवार को या जो वीर नारीज हैं उनके बच्चों को, एनओके को, हो सकता है वो जो उनको लागू है वो ना मिले, क्योंकि जानकारी का गैप है। तो इस गैप को कवर करने के लिए आप सब ने वो फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म, और मैं गुजारिश करूंगा दास साहब से कि वो सारा जो ऑनलाइन ईएसएन गूगल फॉर्म है सबके साथ शेयर किया जाए, जो कि आप सबको लागू है, एनओके को लागू है, विडोज को लागू है, एक्स सर्विसमैन को लागू है। मैं सिर्फ उनको पढ़ के बताऊंगा ताकि अगर किसी को जानकारी नहीं है या कम जानकारी है या अधूरी जानकारी है तो आप इस मौके पर मालूम होना चाहिए कि आपका हक है कि अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं आपके इलाके में, यानी नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वैसे हालात के अंदर हर एक्स सर्विसमैन को 12,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान है। तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई हादसा कहीं पर होता है, आग लगने से या प्राकृतिक कारण के आपका घर में डैमेज हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो हर असम राइफल का एक्स सर्विसमैन ये 12,000 की ग्रांट क्लेम कर सकता है। आपको मालूम है अभी हम सब लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, कुछ जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उनका जो एनओके है उसके लिए फ्यूनरल ग्रांट का जो ग्रांट है वो 12,000 रुपए है। तो अगर आप इन्फॉर्म करेंगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन सेल को तो आपके एनओके को वो ग्रांट मिलेगी। আসাম রাইফলসের 187 রেজিং ডে, এই উপলক্ষে আমরা এক্স সার্ভিসম্যান অ্যাসোসিয়েশন থেকে সবটা অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং ডিজি আসাম রাইফলস, আইজি আসাম রাইফলস শ্রীকুনা থেকে আমরা এই অ্যারেঞ্জমেন্টে সব কিছু হেল্প করা হয়েছে, যাতে আমরা এটা 1835 আমাদের আসাম রাইফলস রেজি ছিল, আর তখন আসছিল কাছাড় লেভি পুলিশ, আর इसका ক্রমান্বয়ে আজকে এটা আসাম রাইফলস এবং আমরা শান একটা অর্গানাইজেশন। আজকে আমাদের এখানে more than 200 widows plus ex-servicemen জমায়েত হয়েছে, অফিসার, আইজি, ডেপুটি আইজি সাহেব, বাকি কমান্ডেন্ট দুইজন সবই উপস্থিত হয়েছে। এখানে আমরা এটা অর্গানাইজ করছি যেন আসাম ডে মানাইছি, মানানোর পর থেকে আবার এই যে আমরা বীর নারী যারা ডেথ ইন সার্ভিস ডিউ টু হোস্টাইল অ্যাক্টিভিটিস তাদের ওয়াইফরে 3 জনকে আমরা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি। এরপরে যারা 80+ এজ, যারা 80 বছর পর্যন্ত তখনও আমাদের সাথে আছে তাদেরও একটা গিফট হয়েছে। এর অতিরিক্ত যারা হ্যান্ডিক্যাপ যেমন আরও 3 জন আসছিল তারারও আমরা একটা গিফট দিছি, যাতে তারা সান্ত্বনা একটা প্রাইজ দিলে পরে তার সবেরই একটা মনে আনন্দ আসে। এই আনন্দটাই আমরা উদযাপন করছি। এরপরে আমাদের এখন টি ব্রেক হইব, টি ব্রেকে সবে চায় পানি হইব, তারপরে আমাদের ডিসপার্স হবে। সব কিছু ফেসিলিটি আছে। আফটার রিটায়ারমেন্ট আমরা যেমন ধরেন ফিউনারেল গ্রান্ট আছে, ম্যারেজ গ্রান্ট আছে, ওল্ড এজ গ্রান্ট আছে, যেমন ইসি মানে এক্স সার্ভিসম্যান কন্ট্রিবিউটরি হেলথ স্কিমের ফেসিলিটি আছে, যেমন आर्मी हॉस्पिटल सब কিছুতে সেই ফ্যাসিলিটি আমরা পাইতেছি, আমরা কোনো অসুবিধা নেই। रामपुर चाय बागान के मैनेजर सुकेश सिंह ने मंदिर निर्माण के लिए किया जमी की दान। रामपुर बागान मैनेजर सुकेश सिंह ने मंदिर निर्माण के लिए किया जमी दान। बोरखला विधानसभा समष्टि के बदलखा शिव मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान किए वो मैनेजर ने। साथ ही काफ़ी दिनों से उस इलाका में वहाँ के लोगों की एक चाहत थी कि वहाँ एक मंदिर निर्माण किया जाए, वो भी शिव जी का मंदिर, जिसके चलते मैनेजर सुकेश सिंह के पास वो लोग गए थे। उसी के चलते बृहस्पतिवार को मैनेजर सुकेश सिंह ने जमी दान किया और इस घटना को लेकर इलाके के हर एक लोगों ने खुशी जाहिर की है, क्योंकि मैनेजर सुकेश सिंह अभी हाल ही में उस मैनेजर की पोस्ट वहाँ ज्वाइन किए हैं। আসন গ্রহণ করার লগে আমি অনুরোধ করব। এখানে আমার উপস্থিত আরেকজন আমার বাগানের দাদা, তাহলে আসন গ্রহণ করার লগে। এখানে আরেকজন উপস্থিত আমার বাগানের টিলাবাবু তানে এখানে আসন গ্রহণ করার লগে উপস্থিত, এবং এখানে আমার মুরব্বী এই গ্রামের আমার দাদা তারা এখানে আসন গ্রহণ করার লগে উপস্থিত। আচ্ছা, এখন আমরা কিছু ম্যানেজার
আমাকে ডাকার জন্য আমি এখানকার গ্রামবাসী তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যশালী ভাবি যে আমাকে একটা ভালো কাজ করার ওনারা সুযোগ দিয়েছেন, যে আমি এই বাগানের জমিটুকু দান করার জন্য পেলাম। সেই জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যশালী মনে করি কি একটা মন্দির প্রতিষ্ঠান করার জন্য আমার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। আর আমি সবাইকে অনুরোধ করব এটাই যে সবাই মিলে যত তাড়াতাড়ি মন্দিরের শিলান্যাস করুন। আর সবের সহযোগিতা নিয়ে আমারও সহযোগিতা থাকবে সব সময়। আমি যতটুকু পারি সহযোগিতা করব এবং মন্দিরটা প্রতিষ্ঠান যাতে অতি শীঘ্र হয় এই বলে আমি কামনা करी। धन्यवाद। प्रवीण नागरिक समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुरिया ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का किया बखान। प्रवीण नागरिक समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुरिया ने सरकारी विभिन्न परियोजनाओं के किया बखान। सिलचर में एक सरकारी सभा का जरिए उन्होंने कहा कि अगर जो भी प्रवीण नागरिक है उनका कोई भी समस्याएं होती है तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और टोल फ्री नंबर में वो बात कर सकते हैं। तो उनका अपना जो समस्या है, चाहे वो घर की हो चाहे वो सरकारी कोई भी समस्या हो, वो समाधान करने के लिए सरकार आगे बढ़ते आ रही है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ये सरकार ने असम राज्य में ये सेवा चालू की है। उनका कहना है कि 60 साल का बाद हर एक प्रवीण नागरिक कभी कभी अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी उनके लड़का या लड़की या परिवार से दूर रहने के कारण उनको भी काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है। इस समस्या निवारण हेतु असम सरकार ने ये सुविधा आगे बढ़ाई है। वहीं दूसरी ओर हर एक नेता ने इस सभा में अटल जी का इस सभा में उपस्थित कमेंडरपुर का स्थल लेकर जाने माने हस्ती उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर हर एक सभा की कार्यकर्ताओं ने प्राक्तन मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी स्मरण किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी सेवा का उद्घाटन किए थे। टोल फ्री नम्बर পইচা ভৰিব নালাগে, সেইটোত আপোনাৰ ডায়েল কৰিলে আপোনাৰ যি সমস্যা 14567 মনত ৰখা সহজ। 4ৰ পৰা আপুনি 7লৈকে কৰিব। 4567 আৰু আগত 1 এটা দিব। 14567 এল্ডাৰ লাইন। এইটোত আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিবাৰিক কিছুমান সমস্যা হ'ব পাৰে, বয়স্ক লোকজনেও যদি তাত সমস্যাটোৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেনেকৈ ইয়াত ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকে গৈ সেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ফুটপাথত পৰি থাকে বা এনে পৰি থাকে, কোনো চাওতা নাই। মই আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন নাগৰিকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ততাতৈয়াভাৱে এই হেল্পলাইনত যোগাযোগ কৰিব 14567ত, যে অমুক ৰাস্তাত আপুনি সঠিক ঠিকনাটো দিব, এড্ৰেছটো দিব, যে অমুক ৰাস্তাত এজন বয়স্ক নাগৰিক ইয়াত পৰি আছে, আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোক আহি আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে, মই সেইকাৰণে এই সভালৈকে আজি আমাৰ ইয়াৰে পুলিচ বিষয়া আমন্ত্रण জনাইছিলোঁ। আজি एसपी तेखेत। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के खुलीचोड़ा इलाके के हत्याकांड के हुआ इंसाफ, 5 अपराधियों की आजीवन कारावास। कछार जिला के उदारबन क्षेत्र के श्यामाचरण दास की मौत के बाद भी भेजा गया डी वोटर के नोटिस। सिलचर की विवेकानंद रोड में मक्खीरानी सुनीति हलदर को किया गया गिरफ्तार, लोगों में चढ़ी आक्रोश। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।